कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? हाफ कर्टन लुकिंग, आधा कर्टन दिख रहा है क्या? कोई नहीं, दुनिया गोल है, कुछ भी दिख सकता है। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। केवल शाह, तो हम कल अपने स्टार्ट किया था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहला पॉइंट हमने आपको टीच किया था, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ओके ना? नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। इसमें लिखेंगे नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन form to form chloride, to form chloride. Non-metal react with chlorine to form chloride. When non-metal react with chlorine, then it form chloride. Phosphorus, phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride. Hydrogen, hydrogen is also non-metal. Hydrogen react with chlorine, it form hydrogen chloride. Hydrogen chloride, hydrogen chloride. Carbon react with Cl2, carbon react with Cl2, it form CCl4. Carbon tetrachloride. Reaction with hydrogen. Third one is reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. Non-metal combined with hydrogen and form non-metal combine with hydrogen and form corresponding compound. Corresponding compound. Non-metal sulfur react with hydrogen form H2S. Sulfur hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Nitrogen react with H2 form ammonia.
चलो पहले देख लो, इसके बाद राइट डाउन करना। क्लोरीन के साथ अगर फास्फोरस रिएक्शन करेगा, फास्फोरस इज ए नॉन मेटल, when react with chlorine then it form phosphorus trichloride, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। पहले देख लो तब लिखना। फास्फोरस रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2, इट फॉर्म फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। When hydrogen react with chlorine, it form hydrogen chloride HCl gas. When carbon react with chlorine, it form carbon tetrachloride CCl4। कार्बन टेट्रा, टेट्रा बोले तो 4, क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड दिख रहा है ना, क्लोराइड। कार्बन टेट्रा 4 है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन और ये 4 है तो टेट्रा और उसके लिए क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। फास्फोरस ट्राई 3 है ना, इसलिए ट्राई आया है, ट्राई क्लोराइड। फास्फोरस ट्राई मतलब ये 3 क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल combined with hydrogen and form corresponding compound, like when sulfur react with hydrogen form H2S, sulfur sulfide, hydrogen sulfide, hydrogen sulfide। And when N2 is non-metal, sulfur is non-metal, N2 react with hydrogen, it form ammonia NH3। तो हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था, can we take reaction with chlorine, third example as example of reaction with hydrogen। ये नॉन मेटल है ना, ले सकते, नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, हाइड्रोजन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको केवल शाह ने बोला कि सर क्या हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए इसको वहां ले सकते हैं, लेकिन उल्टा लिखना पड़ेगा, Cl2 और देन H2 हियर, Cl2 और H2। This one is also non-metal, na? No problem. And react with hydrogen form HCl। तो ये आपका क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, ये आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, और पहला हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था। तो ऑक्सीजन के साथ देखा हमने, O2 के साथ देखा रिएक्शन हमने, Cl2 के साथ देखा, O2 के साथ देखा, Cl2 के साथ देखा हमने, और हमने हाइड्रोजन के साथ देखा। राइट डाउन करो इसको आप। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जनरली, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, जनरली नॉन मेटल will not react with, generally non-metal will not react with, generally non-metal will not react with water and acid। Non-metal will not
react with, non-metal will not react with, non-metal will not react with water and acid. Water and acid. Since they cannot displace hydrogen, 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 non-metal are very reactive in air. Non-metal are very reactive in air, hence it store in water. Hence it store in water. Example, phosphorus. इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? Generally, non-metal will not react with water. Non-metal उसके ऑक्साइड नको, जिसे non-metal is carbon, O2, CO2, then it dissolve in water, then form H2CO3, carbonic acid. When non-metal, ध्यान देना इधर, be careful here. When non-metal react with oxygen, हाँ इसके आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इसको पहले समझ लो. When non-metal react, पहले समझ लो मोटागी. When non-metal react with oxygen, it form carbon dioxide. And after dissolve in water, then oxide will react with water, not non-metal. Then it form H2CO3. Okay. Now, generally non-metal will not react with water and acid. Non-metal normally वो रिएक्शन नहीं करता वाटर से, बराबर है क्या? एयर से रिएक्शन कर लेगा, एयर से रिएक्शन करेगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा. ये कार्बन को पानी में डाल दो, कोल को, क्या रिएक्शन करेगा क्या? कोल को पानी में डाल दो, कार्बन को, कोल को जो हम कार्बन जानते हैं ना, कार्बन को पानी में डाल दो, रिएक्शन करता है क्या? नहीं करेगा. लेकिन कार्बन को बर्न करो, जलाओ, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बने, उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो, स्टोर करने के बाद क्या करो? स्टोर करने के बाद उसको पानी में डालो. सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करो, स्टोर करने के बाद पानी में डालो, तब रिएक्शन करता है. डायरेक्टली नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करता है, बराबर है क्या? फास्फोरस वगैरह पानी से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता. हाँ, फास्फोरस को बर्न करो, पहले जलाओ, उसको जलाने के बाद P4O10 बनता है, उसके बाद उसको पानी में डालोगे ना, तब एसिड बनता है, डायरेक्ट नहीं करता है. इसीलिए बोला गया है कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से करेगा, हाइड्रोजन से करेगा, लेकिन वाटर से और एसिड से नहीं करता है. तो जनरली नॉन मेटल विल नॉट
react with water and acid since they cannot displace hydrogen, इसलिए हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है। नॉन मेटल आर वेरी रिएक्टिव, नॉन मेटल रिएक्टिव होता है इन एयर, एयर में तुरंत ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेता है, हेंस इट स्टोर इन वाटर, इसीलिए वाटर को स्टोर किया जाता है जैसे फास्फोरस। हाउ कैन प्रणव सावंत, हाउ कैन कार्बन डाइऑक्साइड गेट पुट इन वाटर? कोल्ड ड्रिंक पीते हो सावंत जी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप? कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे उसको सोलूबल किया जाता है। ये मान लो लिक्विड है, लिक्विड को, ये लिक्विड है, हम चाहते हैं कि लिक्विड जो है इस वाटर में डिजोल्व हो जाए, तो हाई प्रेशर जब लगाते हैं तो ये प्रेशर उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर जब लगाते हैं तो ये वाटर इसमें आके क्या हो जाता है, सोलूबल हो जाता है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को सोलूबल कराया जाता है, तो प्रेशर लगाया जाता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। थम्स अप एंड कोक एंड स्प्राइट, थम्स अप में, स्प्राइट में, कोक में सबसे गैस भरा रहता है ना, तो गैस सोलूबल किया जाता है हाई प्रेशर पे, उसको प्रेशराइज करके उसमें गैस को भरा जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कोक पियो तो सर अंडरस्टूड लिख के भेज रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कोक पियो तो समझे क्या, पिए कि नहीं पिए? अरे मेरे को बताओ पियो कि नहीं पियो। समझ में आ गया ना? तो जनरली नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बट नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड, इसीलिए हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नॉन मेटल, इसीलिए नॉन मेटल को स्टोर करने के लिए हम वाटर में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड हो गया। हेडिंग डालो यूज ऑफ नॉन मेटल, राइट डाउन हेडिंग यूज ऑफ नॉन मेटल। नाउ यूज ऑफ नॉन मेटल, पहला लिखने में हम ऑक्सीजन इज इसेंशियल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, ऑक्सीजन इज इसेंशियल, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग फॉर breathing। Second, hydrogen is used for welding metal, hydrogen is used for welding metal, hydrogen is used for welding metal, sulfur is used in sulfur is used in manufacturing of sulfur is used in manufacturing of sulfuric acid, sulfuric acid
It is used to make it is used to make it is used to make antiseptic cream. Antiseptic cream. Sulfur is also used in vulcanization of rubber. Sulfur is also used in vulcanization liquid hydrogen is used in rocket fuel. Liquid hydrogen is used in rocket फ्यूल। तो पहले देख लो, पहला तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। क्लोरीन इज नॉन मेटल, यस का मत, का मत। क्लोरीन इज नॉन मेटल और व्हाट व्हाट लिखे हो, तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? अरे क्लोरीन नॉन मेटल ही है ना, क्लोरीन इज नॉन मेटल, नहीं जानते क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन इज यूज फॉर वेल्डिंग मेटल, वेल्डिंग जो किया करते हैं हम। सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज इन एंटीसेप्टिक क्रीम। सल्फर इज ऑल्सो यूज इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसका मीनिंग क्या होता है? रबर को डेंस बनाया जाता है। रबर जानते हो कि लिक्विड फेज में होता है उसको, और डेंस बनाया जाता है। डेंस उसको और मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि वो और पास पास आ जाए और डेंस हो जाए, उसको हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये पोलीमर जब हम बनाते हैं रबर का, तो पोलीमर बनाते समय इस चीज को हम उसमें यूज करके एक्स्ट्रा बॉन्ड जोड़वाते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े। रबर का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें डेंसिटी बढ़ाते हैं, उसको हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। उसमें सल्फर यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन रॉकेट फ्यूल। जो चंद्रयान 2 गया था ना, चंद्रयान 3-2, उसमें रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन और H2O2 डाला जाता है। H2O2 फ्यूल बोला जाता है उसको। तो H2 लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। Liquid hydrogen is used as a rocket fuel. नेक्स्ट लिखेंगे, नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर
एंड फर्टिलाइजर। एंड फर्टिलाइजर। It is used as a preventive due to inert nature. Phosphorus is used in safety material and in firecracker. Phosphorus is used in safety material. Safety material. Safety material and in firecracker. And in firecracker. Next, graphite is a form of carbon. Graphite, a form of carbon. Graphite is a form of carbon used in pencil lead. Used in pencil lead. And diamond is used as a, and diamond is another form of carbon. Hardest substance. Hardest substance used to cut glass. Used to cut glass, या हम इसका यूज ज्वेलरी वगैरह में करते हैं. सिलिकॉन. Silicon is used to make computer chip. Computer chip. And silica gel. Silica gel to use to absorb the moisture. ठीक है, तो यहां से देख लो, नाइट्रोजन इज यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. यहां तक हो गया था ना, वल्कनाइजेशन का मीनिंग समझा दिया था. लिक्विड हाइड्रोजन यूज इन रॉकेट्स फ्यूल, ये बता दिया था. नाइट्रोजन इज यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3. फर्टिलाइजर जो खेतों में हम यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर. फास्फोरस इज यूज इन सेफ्टी मटेरियल. सेफ्टी मटेरियल में हम फास्फोरस का यूज करते हैं. और जो हम दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, या माचिस के जो डिब्बी पे, या माचिस के जो डिब्बी या तिली पे लगा रहता है, या फायर क्रैकर जो हम दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं, वो फास्फोरस का ही होता है. जो उसमें कलर निकलता है, वो जलता है तब वो कलर दिखाता है, तो फास्फोरस के ही वजह से होता है. ठीक है. ग्रेफाइट तो नाम जानते ही होंगे आप, कार्बन से, कार्बन का बना होता है वो, तो उसको हम लीड पेंसिल में यूज करते हैं. तो ग्रेफाइट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से. और कार्बन क्या है? नॉन मेटल. तो ग्रेफाइट बनता है कार्बन से, या कार्बन होता है नॉन मेटल, और उसका यूज करते हैं हम लीड पेंसिल में. और डायमंड,
डायमंड जो होता है वो अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड भी जो होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम इसका यूज ग्लास को कट करने में यूज करते हैं। यानी डायमंड को हम यूज ग्लास को कट करने में यूज करते हैं और ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन में हम कंप्यूटर चिप बनाते हैं, या अब मान लो हमें, यहाँ ध्यान से सुनना, मान लो हमें लैपटॉप में करंट फ्लो करवाना है, तो वहां वायर नहीं जोड़ते हैं ना, वहां आईसी होता है, सर्किट, सर्किट जो होता है वो आईसी होता है। या हम मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या वॉच चलाते हैं, जो डिजिटल चीजें होती है, तो उसमें वायर नहीं लगाया जाता है ना, उसमें सर्किट होता है, देखते होगे आईसी होता है उसके अंदर। तो वो आईसी जो होता है वो चिप जो होता है या मेमोरी जो बनाया जाता है, उसके अंदर जो करंट जाता है वो सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है, यानी वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो मोबाइल का चिप या जो हम अपने कंप्यूटर का चिप या मोबाइल का चिप, जो सर्किट होता है मोबाइल के अंदर, मोबाइल चिप जो होते हैं उसके अंदर वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। और सिलिका जेल, तो सिलिका जेल क्या होता है, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो उसमें सिलिका जेल रहता है, वहां पे फेस पे लगाने के बाद सिलिका जेल वो क्या करता है, वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज होता है एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब करता है वो सिलिका जेल, ठीक है। तो वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। और सिलिकॉन क्या होता है, हालांकि सेमीकंडक्टर है, नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आईसी पानी में गया तो खराब होता है क्या? सर्किट तो नहीं खराब होगा, बट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा ना उसमें। अब मान लो करंट जा रहा है और आईसी को पानी में करंट, क्योंकि हम तो बैटरी से वो चलाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा करंट नहीं होता है ना, अगर मान लो उसमें वाटर गया तो करंट सर्किट इधर उधर क्या होगा, डैमेज हो जाता है। व्हाट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब उसके अपर लेयर पे केवल एब्जॉर्प्शन होता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे हम फेस पे लगाते हैं सिलिका जेल ना, तो यहाँ से जितने भी हमारे पार्टिकल्स है चेहरे फेस का, वो सब उस पर जाके चिपक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्ब कर लिया उसने। सर कैन यू मेक क्रैकर एट होम विथ फास्फोरस? बिल्कुल बना सकते हो आप, क्यों नहीं बना सकते, वो घर पे ही बनाया होता है ना। क्रैकर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं वो ज़्यादा, क्रैकर्स जो होते हैं वो होम मेड ज़्यादा होते हैं। तुम कहीं कहीं, यहाँ तो मैं नहीं देखा, कहीं कहीं जाओगे तो देखो क्रैकर्स घर पे भी बनाते हैं लोग, फास्फोरस को यूज करके घर पे भी बनाते हैं। और किसी को डाउट है? तो ये हमारा यूज रहा नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का यूज याद करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में क्या क्या अलग अलग होता है, मेटल और नॉन मेटल। फिर हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।